नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। और रुख करते हैं पांडेश्वर की तरफ। क्या है आज की और इस वक्त की पांडेश्वर की खबर? आइए लेकर चलते हैं पांडेश्वर और बताते हैं आज की खास खबरें। बांग्ला भाषा और बंगाल की संस्कृति को लेकर सक्रिय संगठन बांग्ला पक्ष को पांडेश्वर में बड़ा झटका लगा है। शनिवार को संगठन से जुड़े करीब 50 समर्थकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। हरिपुर स्थित विधायक सेवा केंद्र में भाजपा विधायक जितेंद्र तिवारी की मौजूदगी में जिला कमेटी सदस्य भास्कर मुखर्जी के नेतृत्व में समर्थकों ने संगठन छोड़ने का ऐलान किया। भास्कर मुखर्जी ने आरोप लगाया कि संगठन का फोकस बांग्ला भाषा और संस्कृति के मुद्दों से हटकर भाजपा विरोधी राजनीति की ओर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वे भाषा और संस्कृति के विकास के लिए जुड़े थे, लेकिन संगठन की मौजूदा कार्यशैली से नाराज होकर अलग होने का फैसला किया। वहीं बांग्ला पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। বর্তমান জেলা কমিটির সদস্য ছিলাম। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি বালিজবি। ভাস্কর ভাস্কর মুখার্জি। আচ্ছা, আপনি বাংলা পক্ষের সঙ্গে যুক্ত তো? এখন গপ চট্টোপাধ্যায় এখন কে বাংলা পক্ষে? সাধারণ সম্পাদক। উনি এখনো আছেন? সাধারণ সম্পাদকই আছে। ওনার কাজে আপনার কি আস্থা ছিল না অনাস্থা? আমি সংগঠনের কাজ দেখে এসেছিলাম। সংগঠনে পুরো বাঙালির জন্য কাজ করছিল, সেটা দেখে এসেছিলাম এবং ভেতরে না গেলে কোনো কিছু জানা যায় না। ঠিক আছে? যখন আমি গিয়ে দেখলাম যে ওরা শুধু যেটা বলছে সেটাই সম্পূর্ণ সত্যি না, কিছুটা হলেও তাদের বিজেপি বিরোধিতা করার একটা মনোভাব আছে। তো আমার মনে হলো যে আমি বাংলা এবং বাঙালির কাজ করার জন্য কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করতে হবে, এটা তো আমার মনে হয় না। আর আমি বাংলা পক্ষের সদস্যদের জন্য বলবো যে যদি বিজেপির বিরোধিতা করারই হয় রাজনীতির ময়দানে নামতে পারে। আচ্ছা, বাংলা পক্ষে কতদিন যুক্ত ছিলেন আপনি? কতদিনে যুক্ত ছিলেন? আমি 2021 থেকে বাংলা পক্ষের সাথে আছি। কে আপনাদের বারণ করেছে যে বিজেপি হয়ে লড়াই, বিজেপির বিরুদ্ধে বলার জন্য কে নির্দেশ দিয়েছে? কারা? সংগঠন, জেলা সম্পাদক থেকে শুরু করে সবাই। আপনাদের বাংলা আমি জেলা কমিটির মেম্বার ছিলাম। আমাদের ছোট্ট একটা কমিটি ছিল। জেলা কমিটিতে প্রত্যেক বিধানসভা থেকে একজন করে ছিল। আমি পান্ডেশ্বর বিধানসভা থেকে জেলা কমিটির মেম্বার। জেলার সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে আমার কাজ। সেইখানে আমাদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করা হতো, সেইখানে ইনস্ট্রাকশনের কথা আমি বলছি। এই 4 মেতে বাঙালি পরিবর্তন হয়েছে, তারপরেও তোমাদেরকে কি জবাব দেওয়া হচ্ছিল কি মানে বিজেপি বিরোধিতা করো, কি ওর আগে এটা করা হতো? না না, একই রকম, একই ওদের মোটিভটা একটাই। মানে 4 তারিখ পরেও করা হচ্ছে আপনাকে? এটাই তো বললো, আমি যেটা বুঝলাম যে এটাই তো বললো যে 4 তারিখ আগে অবধি তো ওরা ছিলই, ওদের মাথায় তো এটা ঢোকানো হয়েছিল যে বিজেপি এলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা সংস্কৃতির উপর একটা আক্রমণ আসবে। কিন্তু 4 তারিখ পরে যখন ওই শুভেন্দু অধিকারী যখন বলে দিলেন যে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, এরপর তো ইস্যু আর থাকে না। তারপরে ওনাদেরকে বলা হচ্ছে বিজেপি বিরোধিতা করতে হবে। তখন ওরা বলে যে ভাই আমি যেটার জন্য আন্দোলন করছিলাম সেটা যখন পেয়ে গেছি, তো শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণ আমরা বিরোধিতা করবো কেন? তাহলে এই বিরোধিতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতা হবে। এই বিরোধিতা যদি কেউ করতে চায় সে অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সদস্য হয়ে করবে। তাহলে বাংলা পক্ষ নাম করে কেন করা হবে? নন পলিটিক্যাল ব্যানার নিয়ে কেন করা হবে? সেই জন্য, এবং তারা এটাও বলেছে যে আমরা আজকে গণ ইস্তিফা দিচ্ছি এই কারণে যে সরকারের উপর তাদের ভরসা এসছে। কিন্তু সরকার যে গাইডলাইন দিয়েছে সেই গাইডলাইন যদি কোনো অফিস না মানে তাহলে আবার আমরা আন্দোলন করবো, যাবো যে ভাইটা মানতে হবে এবং আমরা তাদেরকে সমর্থন করবো যে হ্যাঁ ভাইটা করবে। তুমি আরেকটা কথা যতটা ক্ষমতা আমি সেটা একটু করবো নাকি? আমি গর্ভচারের একটি জায়গাটা আমি কন্ট্রোল করার ক্ষমতা আমার আছে। তো তোমার উপর কোনো অ্যাকশন নিল না সংগঠন? বলছি একই রকম ভাবে অ্যাকশন কার উপরে হয়? যার কেউ থাকে না পাশে। আমার পাশে পুরো বান্ডে বসে আছে, তাই অ্যাকশন নিতে ওদের কষ্ট হচ্ছে, তাই প্রেসারাইজ করছে। 50 জন গণ ইস্তিফা দিচ্ছেন যারা ওদের একটিভ মেম্বার ছিলেন, সমর্থকরা পরে হয়তো कह रहे हैं भैया कि बांग्ला पक्षों के आड़ में कुछ लोग एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जैसे पिछले छठ पूजा के दौरान एक अंडाल में घटना हुआ था जहां फल बेचा जाता था छठ पूजा के दौरान। वहां पहले बीजेपी ने आके कहा कि वहां मछली नहीं बिकेगा, लेकिन वहां बांग्ला पक्ष पहुंच के बोलता है कि छठ पूजा के दौरान जहां फल बिक्री हो रहा है वहां मछली बिकेगा। तो ये क्या एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बांग्ला पक्ष का कुछ इस्तेमाल? ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, और उसी समाज में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। यदि कोई मछली का व्यवसायी है, आप मैंने खुद देखा है कि मेरे घर के बगल में एक काकीमा रहती है, बंगाली काकीमा, और छठ पूजा जब हमारे घर में होता था तो काकीमा 2 दिन अपने घर में मछली नहीं लाती, लेकिन हम यदि लाएगी भी ये उनका बड़ापन है, नहीं लाई। लेकिन यदि काकीमा की इच्छा हुई, काकीमा के घर में कोई बेटा हो और उसको
कर सकते हैं कि मेरे घर में छठ पूजा है तो तुम मांस खा लेना। ये दोनों तरफ से ये आपस में विश्वास का वातावरण होना चाहिए। जैसे वो हमको सम्मान दिखाएगी, 2 दिन घर छठ पूजो, 2 दिन हमारे घर मांस हो। अब हमको भी सोचना चाहिए कि यदि उनका बेटा को तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि एक सिंदूर टीप देवे, तो सिंदूर टीप होने से हमारा छठ पूजा अपवित्र हो जाएगा। ऐसे हमको बड़ा मन करना चाहिए कि ठीक है, उनका बेटा का तबीयत खराब है, एक दिन तो आटा खाना खा ही सकते। ये दोनों तरफ से ये वातावरण बनना चाहिए। घटनाएं कभी कभी आर्टिफिशियली बनाई हो जाती है, अपने आप को प्रासंगिक करने के लिए, अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं ये करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे समाज के लिए कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता, समाज के लिए वो भला नहीं करना चाहते, वो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये समाज को जोड़ने के लिए आगे बढ़े और जोड़ने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में देखिएगा छठ भी होगा, छठ में बंगाली लड़के भी जाएंगे और ठेकुआ खाएंगे, और टिप्पण तारने भी होगा, वहां हम लोग भी जाएंगे और ताकि हम लोग के हाथ में भी धागा बनेगा। यही संस्कृति में होगा। आप बताइए, शरद चंद्र का उपन्यास देवदास यदि नहीं बना होता हिंदी में तो इतना पॉपुलर हुआ होता क्या? हर बंगला भाषा से जुड़े हुए जो भी साहित्यिक है, उनका हर कोई चाहता है कि उनका अनुवाद अन्य भाषा हो, क्योंकि हिंदी के पाठक ज्यादा है। कौन सा बंगाली, कौन सा लेखक नहीं चाहेगा कि मेरी कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े? तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए भारत में जिस भाषा को ज्यादा लोग समझते हैं, वहां उत्तर प्रदेश में ज्यादा हिंदी भाषी है, बिहार में ज्यादा हिंदी भाषी है, झारखंड में ज्यादा हिंदी भाषी है, मध्य प्रदेश के लोग हिंदी पढ़ते हैं, हरियाणा के लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो बंगाली जो लेखक होंगे वो तो चाहेंगे कि हमारी जो पुस्तक है उसका अनुवाद हिंदी में भी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ पाए। यही तो संस्कृति है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी पढ़े ये हम जरूर चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पश्चिम बंगाल की मिट्टी पर बंगला भाषा को ही खत्म कर दिया जाए, बंगला भाषा से ही घृणा किया जाए, बंगला भाषा को ही छोटा दिखाने का प्रयास किया जाए और दूसरे किसी भाषा को थोप दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। मूल ये बंगला भाषा है, बंगला भाषा की बंगाल की मिट्टी है, यहाँ पर प्रधानता बंगला भाषा की ही रहनी चाहिए। बिहार में जब हिंदी की प्रधानता रहनी चाहिए, उड़ीसा में जब उड़िया की प्रधानता रहनी चाहिए, तो बंगाल में बंगला भाषा की ही प्रधानता रहनी चाहिए। लेकिन ये सब बातें उसके साथ आप पहले बंगला सीखिए, पढ़िए, उसके बाद दूसरी भाषा में यदि सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसका स्वागत है। क्यों हिंदी के हो, जितना दुनिया में भाषा सब कुछ सीखिए, कौन मना किया? लेकिन यहाँ की भाषा को अवज्ञा करके, यहाँ की भाषा को अपमानित करके हम दूसरे किसी भाषा को थोपने का प्रयास करें, ये ठीक नहीं। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।